And we welcome all the members of IVA who are present here. And also I welcome Mr. Mukesh Kumar Singh, who is the chairman of IEI also. He is here. Today, as he is not here, as he is busy in Rath Yatra program, so I have been given the responsibility to organize this event. Like all the months, previous months, on every first Saturday of the month, we organize the technical webinar. So we are doing the same this Saturday also. Today the topic is financial challenges in current scenario. This was a very burning topic. That's why we adopted this topic to discuss this topic. Now, firstly, I will hand over to Mukesh ji to brief his lecture. Then I will continue further. Mukesh ji. Thank you, sir. On behalf of the Institute of Engineers, Kanpur Center, as well as President IVA, Engineer S.S. Das ji, he called me just 10 minutes back that you welcome on behalf of both Chairman IVA as well as Chairman IEI Kanpur Center. So I take this opportunity to welcome all learned members who are present here as a member of IVA or as a member of IEI. I congratulate to IVA. They are continuously organizing this event since last couple of years. Previously, it was organized on second Saturday, but since last 1 year, almost 1 year, IVA is organizing this webinar on first Saturday of every month. This time, they selected a very good topic, challenges against the valuers. So today there is no chief guest or such type of formality. The discussion will remain open to all members as well as the lecture which is invited by the IVA. So I take this opportunity once again to welcome all members of IVA as well as IEI to get benefited from this webinar. Thank you, sir. Valuation challenges. Lectures will be given by myself and the Vice President Mr. Anand Singh. I started this opportunity was given to me. So, on today's topic, valuation challenges in current scenario. First of all, I would like to tell that valuation is an opinion from an independent valuer. It is the sole jurisdiction of bank to accept it or not. If there is any doubt, he can take second valuation or third valuation. Then the banker is not satisfied. Yeah. Nowadays, it has been become there is an unnecessary involvement of banker regarding the property value. Nowadays, bank behaves like spokesperson of borrower. To the property value, which are reflecting in different websites, that is Magic Brick, 99acres.com, etc. The values which are available on these websites are nothing but the demand of the applicant for their property. But this is not the fair market value. Fair market value comes into existence when the deed is materialized on a certain value. So that value will be considered as the fair market value. But bankers rely that we should go on these values which are reflecting on Magic Brick or
we have to resist on this values which we are getting as a deal from different areas by our methods of local survey, etc. So we should stick on those values, not go out for banker's choice. Another matter is the different values which we consider in the valuation, that is fair market value, realizable value, distress sale value, etc. Fair market value depends upon the value we are getting from the local survey or which is the market value as on date. But realizable value and distress sale value, it depends on n number of factors. But nowadays, these values are also decided by the banker. They say that you will take 90% as the realizable value, or 95% as the realizable value, or you will not go less than 80% for distress sale value. So main problem is that all the things, if decided by the banker, then what is the role of valuer? They become just the yes man of banker, that whatever they want, we should give them the values. So we should be very clear about these values, that what should be the fair market value, what should be the realizable value, and distress value, and so on. Because this is the sole discretion of the valuer, not the banker. One more problem which we are facing nowadays is the infiltration of outside valuers in your city. Suppose we are here at Kanpur. The valuers from Lucknow, Varanasi, Prayagraj, etc. are moving from there and doing valuation at Kanpur. Have any knowledge about the Kanpur city, topography, and all the things, but they have just sent 1 or 2 members or boys which are not even diploma holders, and they are doing the valuations on their behalf. They just become the yes man of the banker. Whatever they want, they are giving the value, because they don't have any information about the city where they are doing the valuations. And banker are very safe for these valuers, because these valuers working as the yes man of banker. Whatever values they want, they are giving. And this becomes problem for us. And there is one more concept of corporate vendors. They are providing their services throughout the country or even throughout UP. If there is any valuation at a nearby area, Ghatampur, Hamirpur, Etawah, etc., whatever location is there, they are willingly going there and doing the valuations. So we should stop such type of valuers infiltration in others' territory. I think we should do some geotagging, that in the specified areas where they belong to, they should do their work in those areas only, and let other valuers to do their valuation in their own city. One more problem is when bank handles you, then they are going to the merits and demerits, and then only they handle you as a valuer of their bank. Once you are empaneled, until or unless you get some work from the bank, how they will assess your workmanship or capability. For example,
Kanpur, number of valuers were in panel in Union Bank of India 2 years back. Till date, they haven't gone any assignment, and 1 year back or 6 months back, one phone call was received that bank wants to review your performance. Then how bank can review our performance until or unless we have been assigned any work? When we do some work, then only our capability or other things can be assessed. So I think there should be rotation of work to be allotted to the valuers. Also, one more thing, the payments issues. We do the valuations for our livelihood also. Our staff is also involved there. We, in 40% or more cases, our payments are not materialized. Bankers say till the case is not finalized, I cannot make you payment. And if you say that please, we have done our duties, please do the payment, then bankers say that we are not able to debit the account of the borrower. Then what we shall do? We have given our services, but we are not able to get the payments. So this also makes very embarrassing position for us. But these are the problems in nationalized banks. On the vice versa, no doubt in NBFCs or private banks, payments are less. But whatever work you do, payments are insured. Suppose you are given 20 valuations. No doubt rates are less, say 2,000 per month per case. Then 40,000, you raise the bill at the end of the month and the payment is materialized within 20 days. So we should discuss on this matter also, that how the payments can be get from the banker. We are fighting for indemnity, as you know, for the last many months. Till the solution is not achieved, we are exempted from this indemnity clause for IVA members especially. And when the case will finalize, then we will see what happens. So these are the challenges which we are getting from bankers say. So going through above, it is noted that valuation profession is going very tough day by day. The community is fighting for its survival. If they give inflated values as per demand from banks official, there are possibilities of account become bad or NPA due to overfunding. And if we go for ethical valuation, then you won't get the assignment. Bank says until or unless you get the value as per our demand, the assignment will not be given to you. Recently, a case was different. In NBFC, there was a clause at one item that compliance to sanction map / bylaws. We had to give the answer yes or no. So, I think 80% buildings are constructed which are not as per sanction map or bylaws. So, in most of the cases, we write it as no. When we write no, then a call was received from the zonal technical manager that the valuers who are not giving the answer in yes,
they should not be assigned any work. So this is the scenario that what we should do. If we give the correct answer, then the NBFCs don't give you the assignment. And if you give the wrong thing, then it will be very crucial for us. So these are different problems which we have discussed. Now it is a question of debate amongst us that which path we should follow. Thank you. Good evening all. I have put a question demand by banker after the sanction of loan. In his sanction letter, he has write that all can read what they have write, and they are saying that we have to issue the certificate whether all fact and incomplete matter is correct. I will read that question from the banker have asked. After the sanction of loan, he has right. Branch has to obtain the revised valuation report with the following clause. Following declaration. I and B certified that the certificate issued after the verifying necessary details, and I or B are aware that the giving false certificate is criminal act and a punishable offence. So what is the different views on that matter in our meeting? These are the problems which we are facing day by day. And nowadays bankers are overwhelming us that whatever they want to get it from us. So in this platform we want to discuss that what we should do. They have right this matter in their sanction letter to branch. Yeah. I have posted same things in yesterday in groups also. Okay. Anybody comment on this? गुड इवनिंग सर, माई सेल्फ मुकेश कुमार सिंह सर। आवाज आ रही सर? हाँ आ रही। सर इसमें मेजर इश्यू है कि जो ये हमारा ग्रुप फॉर्म है सर, आयुवा है, इस तरह के और भी जो हमारी इस तरह के ग्रुप्स हैं, वो कहीं न कहीं ग्रुप को यूनाइट होना पड़ेगा। क्योंकि देखिए बैंक तो एक सिस्टम में काम कर रहे हैं सर, लेकिन जो पैरेलल है वो कहीं न कहीं हमें अपना जो एथिकल और इस तरह की चीजों को एक तो डिफाइन करना पड़ेगा ना सर, कि आप डॉक्यूमेंट में कुछ है, अगर आप गलत देते हैं तो उस पे इन फ्यूचर कभी भी कोई इंसिडेंट होता है या कुछ दूसरा एंगल से मैं भी बात करूं तो पता चलेगा कि लास्ट टाइम में किस वैल्यूअर ने किया था और उस वैल्यूअर पे फिर क्या एक्शन होगा। अगर आपने गलत रिपोर्ट अगर दी है तो फिर वो तो मतलब एक तरह से टाइम वाले में चले जाएंगे सर। तो कहीं ना कहीं सर हम लोगों को मतलब जो भी हमारे एसोसिएशन के लोग हैं, इसके अलावा भी और भी जो पैरेलल एसोसिएशन है, तो कहीं ना कहीं इसको धीरे धीरे मतलब खत्म करने की बात होगी। दैट इज नॉट ए वन डे, बट थोड़ी बहुत तो हो सकता है मैनिपुलेट, लेकिन ड्रास्टिक या जो बहुत सारे पैरामीटर्स है उसको मैनिपुलेट करना नॉट ए मतलब करेक्ट नहीं है सर, जो मेरा अपना मानना है सर। क्योंकि ये तो दुधारी तलवार पे है सर, इधर करो तो भी दिक्कत, उधर करो तो भी दिक्कत। कहीं ना कहीं जो हम लोगों के साथ है, कहीं ना कहीं हम लोगों को थोड़ा यूनाइट होना, क्योंकि देखिए हम इंडिविजुअल को हम कंट्रोल कर नहीं सकते सर, जो बैंकिंग सिस्टम है या जो इस तरह की चीजें हैं। कहीं ना कहीं हमारी जितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन इसको भी हम लोग किया जा सकता है कि डेविएशन को मिनिमम रखा जाए, मतलब ठीक है 1%, 2%, 5%, लेकिन डेविएशन को जितना, क्योंकि देखिए जो हाउस बन चुके हैं, कंस्ट्रक्टेड है, तो उसमें तो आप बाद में कुछ कर भी नहीं सकते ना कि हमने जो लिखा है उसको रेक्टिफाई कर ले, क्योंकि तो मेजर कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं सर। मेरा यही सबमिशन था सर। एक और इंसिडेंट बताता हूँ। हमारे एक फ्रेंड ने
एक 200 स्क्वायर फीट के फ्लैट की रेनोवेशन का एस्टिमेट 14 लाख रुपए का दिया है, और वो हाउसिंग बोर्ड का फ्लैट है फरीदाबाद के अंदर। तो 200 स्क्वायर फीट का दो डबल स्टोरी फ्लैट है, इसमें ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट है 200 स्क्वायर फीट का, उसकी रेनोवेशन की एस्टिमेटेड कॉस्ट जो उन्होंने दी है वो 14 लाख रुपए दी है। वो क्या लगाएंगे उसमें, सोने की प्लास्टर करेगा? ये तो वो सर, वो उन्होंने क्या लिखा अभी मैंने देखा नहीं है, पर मुझे जो फोन आया था तब मैं बता रहा हूँ कि 14 लाख रुपए का एस्टिमेट दिया। कोई बैंकर मेरे से पूछ रहा था रीजनल ऑफिस में। सर इसमें एक छोटा सा और सबमिशन है कि सर जो हमारे वैल्यूअर्स लोग हैं, सब लोग हैं, सारे लोग हैं, इनको एनुअल कुछ इस तरह की ट्रेनिंग या मतलब अपग्रेडेशंस के साथ है, रूल रेगुलेशन के साथ थोड़ा सा चीजों को किया जाए कि जो इस तरह के फास्ट प्रैक्टिसेस है उसके साथ लोगों को शेयर किया जाए। और कहीं न कहीं क्योंकि सर एक तरह से ये तो एनजीओ की तरफ हो गया कि जब तक हम ही लोग अवेयर नहीं करेंगे, हमारे में से ही लोग अगर इस तरह का कोई कर रहा है तो उसे भी हमें वो मतलब करना डिस्करेज करना है। अगर अपनी टीम में से भी कोई इस तरह की करने की कोशिश कर रहा है सर, तो सब कुछ लोग जानबूझ के ही कर रहे हैं। वो रहता है कि हमारी कम्युनिटी में 2-4 लोग ऐसे कर देते, सारी कम्युनिटी पे इम्पैक्ट आता है, लेकिन कहीं न कहीं हमको सारे लोग मिलके मतलब जो हमारे ग्रुप में मान लीजिए अगर कोई इस तरह चीजें कर रहा है तो सारे लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको थोड़ा सा इनडायरेक्ट में डिस्करेज करेंगे कि ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत हम हो सकता है 100% करेक्ट नहीं हो सकते सारे वैल्यूएशंस पे, लेकिन मतलब ड्रास्टिक चेंज मतलब होता है कि 10 का 100 होना या ये थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं है सर। क्योंकि देखिए कोई कर रहा है इसी लोग करवा भी रहे हैं सर, तो हमें यूनाइट होना पड़ेगा क्योंकि उनको हम नहीं कंट्रोल कर पाएंगे सर जब तक बिना यूनाइट। जैसे हमारा आईवाइट बना है, आईवाइट फोरम में जितने लोग जुड़े हैं, अगर इसमें से किसी की इस तरह की चीजें रिपोर्टिंग हो गई तो कोई डायरेक्ट एज ए आईवा उनको बात कर सकती है, भाई ठीक है नहीं तो फिर आप उससे बाहर हो सकते हैं या हमारी कम्युनिटी से। मेंबर्स हमारे नहीं है, उनपे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। ये है जी सॉरी, प्रॉब्लम ये है कि वो लोग किसी एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए ही नहीं है, वो सिर्फ काम में जुड़े हुए हैं। मेन दिक्कत वही आ रही है। तो सर हमें फिर बैंक के साथ इसको प्रेजेंट करना पड़ेगा ना कि सर कोई भी बंदा है, किसी न किसी जो भी हमारे वैलिड एसोसिएशन का मेंबर होगा वही प्रैक्टिस कर सकता है सर, क्योंकि जो भी हमारी तरह 3-4 है एसोसिएशन, मतलब बिना एसोसिएशन के कोई इंडिविजुअल अगर मैं हूं तो मेरे ऊपर क्या कंट्रोल है सर? मेरे ऊपर तो किसी का कंट्रोल नहीं होगा सर। बस वही दिक्कत है, वही दिक्कत है। नहीं तो वो कराना पड़ेगा सर, इसमें सारे एसोसिएशन के लोग भी एक बार मीटिंग कर सकते हैं सर, सारे जो एसोसिएशन के जो लीडर्स हैं, लीडिंग कैपेसिटी में लोग, तो उनको भी बात किया जा सकता है कि कोई इस तरह की चीजें कर रहा है तो टोटल सोसाइटी की बात है ना सर, नॉट इंडिविजुअल। फोरम में किया जा सकता है कि अब बैंक को किसी 40 लाख रुपए का लोन देना है कंस्ट्रक्शन के लिए, भले 300 स्क्वायर फीट का या 400 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, उसने बोला मैं 40 लाख का एस्टिमेट चाहिए था, जैसे बनाओ, आप मना करो, दूसरा मना करे, तीसरा तैयार बैठा हुआ देने के लिए। सर मेरा कहना है कि सर आप कितने % वेरिएशन मान सकते हैं? 25% मान सकते हैं सर। अगर 100 रुपए की वैल्यूएशन है तो हम 75 से 125 मान ले। आप 100 रुपए को 500 तो नहीं कर सकते ना सर? नहीं करते सर वही चीज हमने बैंकर से डिस्कस करी थी कि उस फ्लैट को बिल्कुल तोड़ के ब्रांड न्यू बना दिया जाए तो अभी 5 लाख रुपए में बन जाएगा। 200 स्क्वायर फीट का फ्लैट 2,500 रुपए स्क्वायर फीट हाउसिंग बोर्ड में सिंपल स्ट्रक्चर है, 2,500 रुपए स्क्वायर फीट में सक्सेस हो जाएगा, 5 लाख रुपए बन जाएगा। तो रेनोवेशन का एस्टिमेट 14 लाख कैसे दिया जा सकता है? हमारे से कहिए ठीक है जी आप मत दो, कोई बात नहीं हम देंगे नहीं उसको, और दूसरे से लेकर आगे बढ़ा दिया आरओ को प्रपोजल, आरओ वाले ने मुझे फोन किया तो मैं आप लोगों को सामने रख रहा हूँ। नहीं तो सर आप मेजर कंसर्न क्या है इसको कंट्रोल करने का, ठीक है सर एक हमारी ये प्रॉब्लम है सर। अब सोल्यूशन तो हम क्या कर सकते हैं? सोल्यूशन तो यही हो सकता है कि जितने इस तरह के आईवा की तरह ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर जो लीडिंग कैपेसिटी में लोग हैं करें, क्योंकि सर देखिए अगर मैं इंडिविजुअल हूँ तो मैं बैंक के साथ ट्यून होकर मैं कुछ भी देता रहूँ, बैंक का काम होता रहेगा, बैंक में मुझे काम देता रहेगा सर, तो कहीं ना कहीं बाकी लोगों के लिए जो जेन्युइन काम कर रहे हैं उनके लिए दिक्कत है ना सर। और देखिए सर बाद में कभी कुछ मेजर इंसिडेंट होता है या जो फ्रॉड पकड़े जाते हैं तो बाद में पता चलता है ना कि डिफरेंट लेवल पे उसको इग्नोर किया गया है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, जितने चेक पॉइंट थे सारे चेक पॉइंट्स को हम लोगों ने वो किया है, हम देखिए किया सर। थोड़ा सा कहीं ना कहीं किसी भी काम में एथिक्स को तो लाना पड़ेगा सर थोड़ा सा। बैंक जो रहता है वो जो इम्पैनलमेंट करता है वो इंडिविजुअल का करता है, अब उस पे
कि आप जो डिफरेंट एसोसिएशन से जुड़े हुए मेंबर उन्हीं को खाली पैनल कीजिए। सर मेरे ख्याल से सबसे बड़ी दिक्कत आती है। नहीं एक सर, ये कोई बड़ा टास्क नहीं है। अगर हम सारे जितने इंस्टीट्यूशन सारे हैं सर, मैंने अगर आईवा की तरह और भी 3-4 एसोसिएशन है, इन एसोसिएशन आपस में करेस्पॉन्डेंस करें, क्योंकि जो प्रॉब्लम सर आप फेस कर रहे हैं, हम लोग फेस कर रहे हैं सर, दूसरे वाले भी यही फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम सर। प्रॉब्लम तो केवल हमारे ग्रुप की नहीं है सर, ये अदर्स ग्रुप की भी प्रॉब्लम है। तो हम उनको मतलब कोई पेन लेना नहीं चाहता है। अब आईओ भी बैठा हो, उसको क्या मतलब इससे? आप जो करो करते रहो। नहीं सर, मैं सर आईवा की तरह सर और भी ऑर्गेनाइजेशंस तो है ना सर, जो 3-4 हमारे पास है, उनको हमारे प्रेसिडेंट बात कर सकते हैं। मतलब जस्ट मेरा कहना है कि सर इसके अलावा मान लीजिए सर हमारी प्रॉब्लम है, सलूशन तो एक रास्ता ये है सर, इसके अलावा भी अगर कोई बेटर हम लोग ब्रेन स्टॉर्म करके कोई सोल्यूशन निकाल सके। देखिए इंडिविजुअल को आप कैसे कंट्रोल करोगे सर? जैसे मैं ही हूँ, अगर मैं कुछ करता हूँ तो कल मुझे आईवा कहता, मैं आईवा से बाहर हो जाऊंगा, आप मुझे अपने ग्रुप से बाहर कर देंगे, ज्यादा ही करेंगे, मेरी मेंबरशिप कैंसिल कर देंगे। मेरी बैंक के साथ अच्छी जान पहचान हो गई, तो बैंक के साथ बैंक को जो भी चाहिए मैं बैंक के हिसाब से कर दूंगा, बैंक मुझे काम भी देता रहेगा, मेरा काम चलता रहेगा। मतलब एक बंदा गलती करके सारे सिस्टम को वो कर रहा है और मेरे तरफ देख के बाकी लोग भी आ जाएंगे। तो जो जेन्युइन मेंबर है सर, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है ना सर। हमें देखिए, दिस इज नॉट ए 1 मंथ 1 ईयर सोल्यूशन, ये तो हमें लॉन्ग टर्म में लेके चलना है ना सर। इन वैल्यूएशंस का काम तो परमानेंट चलेगा ना सर, ये तो खत्म नहीं होना है। तो इसमें अगर कुछ मॉल फंक्शन है तो धीरे हम लोग उस पर क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बैंक को हम नहीं कंट्रोल कर सकते सर। बैंक को तो जब तक सारे ग्रुप एक साथ नहीं आएंगे तो उसके बिना नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो हमें करना पड़ेगा कि कोई भी वैल्यूअर है मेंबरशिप के साथ ही आए। अगर ये हम करा लेंगे तो तभी हम लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाएंगे, और एक रेट को भी आप निगोशिएट कर पाएंगे सर, कि किसी वर्क के लिए एक नॉर्मल रेट है, जो कोई होता है ना उससे कम रेट में भी काम कर लेंगे, ये भी होता है सर। जैसे एक साल पहले हम लोग जेडो गए थे, आरओ गए थे, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक वैल्यूअर्स मॉडल है, वो कम रेट में काम कर रहे थे। हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि सर रेट 5000 का वो 2000 पे कर रहा है, उसको क्यों काम दिया जा रहा है? बोले जो हमें सस्ता करे उसको नहीं, काम आपको क्यों दे? नहीं तो जो इन्होंने सर्कुलर बना रखे हैं फीस के, वो किस लिए बना रखे हैं सर इन्होंने? अरे उनको उससे मतलब ही नहीं। अभी बैंक ऑफ इंडिया का था, मैंने 50,000 का बिल रेज किया, असाइनमेंट करने के बाद कहते 5000 रुपए ले लो। मैंने क्यों ले लें? बोले इससे ज्यादा बार नहीं दे रहा है, तो मैं उसको इन्वाइट नहीं कर सकता। आप पेमेंट ना दो, आगे काम ना करना हमारा। नहीं सर, बारोवर से आप निगोशिएट नहीं कर रहे थे, बैंक कर रहा था ना। अगर मुझे बारोवर से निगोशिएट करना तो मैं फ्री में बारोवर का काम कर दूं, फिर मुझे बैंक से क्यों बात करना सर? सर बैंक वाले तो कहते हैं जी वो देना नहीं चाहता, जो लोन ले रहा है वो देना नहीं चाहता पैसे, वो तो फिर वैल्यूएशन क्यों करवा रहे हैं? जब नहीं देना चाहते तो नहीं कर पाओ। सर मैं बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। बेसिक प्रॉब्लम मैं मेरा पूछना वाला है कि बेसिक प्रॉब्लम है आपने कब से महसूस की, कितने सालों से शुरू हो गए बताइए? हमारे सीनियर्स लोग हैं, बेसिक की प्रॉब्लम आप कब से सोच रहे हो कि यार ये शुरू हो गया? जब से डीएसए कल्चर बैंकों में घुस गया, जब से डीएसए कल्चर बैंकों में आ गया, तब से ये प्रॉब्लम ज्यादा खड़ी हो गई। एक पॉइंट नेगोशिएट करता है। मैं सर सहमत हूँ। एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट सर और बताइए। दूसरा ये है कि जब से एसबीआई ने 2000 रुपए में काम कराना शुरू कर दिया और लोग 2000 रुपए में काम कर रहे हैं एसबीआई का, हर आदमी एसबीआई से कंप्लेन कर रहा है। और एसबीआई में भी ये होता है कि वो कॉर्पोरेट की ट्रांजेक्शन को भी उठा के वहां दे देते हैं हम में, और हम वाले करवा देते हैं 2000 रुपए। देखिए एसबीआई का तो आप छोड़ ही दीजिए, पेमेंट का छोड़ दीजिए और डीएसए का छोड़ दीजिए, काम करने का तरीका छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर मैं जो फेस कर रहा हूँ, जब से ये आईबीबीआई वाला क्या कहते स्टार्ट हुआ है, तब से क्या हुआ है कि विदाउट क्या कहते लोगों को कोई भी नॉलेज नहीं है। उन्होंने एक एग्जाम दिया, 60 नंबर लाए, उसमें डिप्लोमा होल्डर्स भी हैं, उसमें आपके क्या कहते हैं अदर्स मेंबर्स भी हैं। सिंपली आपने सिविल से बीटेक किया और आपने जस्ट अगले दिन क्या कहते आईबीबीआई निकाला, तो आप तो ब्रेड बटर भी ले लो। मेरा अपना ओपिनियन ये है कि जब से न्यू कमर्स आए, आना चाहिए अच्छी बात है हेल्दी, लेकिन न्यू कमर्स के लिए क्या हुआ कि उनको तो ये लगा कि यार ब्रेड बटर का सवाल है, पकड़ो यार इसको। उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी मिली उनको, 3000 रुपए, 2000 रुपए, 1500 रुपए।
तो मैं जो फेस कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं उरई से कंसर्न करता हूँ, बहुत छोटी जगह है उरई, लेकिन मैं फेस ये कर रहा हूँ कि अधिकतर जो भी गड़बड़ियां हो रही हैं, अधिकांशतः हमारे अपने जो एज वाले मेंबर हैं 50 अबव 50, या मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि नीचे वाले गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन जब न्यू कमर्स आए हैं IBBI के थ्रू, अब सोचिए डिप्लोमा होल्डर्स वाले को 2 करोड़ की उन्होंने वैल्यूएशन की लिमिट दे दी, जिसने आज तक कोई भी क्या कहते वैल्यूएशन निकाली नहीं होगी, जिसने साइट इंस्पेक्शन भी नहीं किया होगा, वो वैल्यूएशन का ABCD नहीं जानता होगा, मार्केटेबिलिटी क्या है क्या नहीं है, क्या फैक्टर्स तक नहीं जानता होगा कि क्या इफेक्ट होगा मार्केटेबिलिटी, रियलाइजेबल वैल्यू क्या। हालत ये है सर कि मैं पिछले 35 साल से जुड़ा हूँ, 90 से जुड़ा हुआ हूँ। स्थिति ये है कि उस समय ना तो IBBI था, उस समय ना ही इंडिविटी बॉन्ड था, उस समय ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। वैल्यूअर ने जो रिपोर्ट दे दी, पैनल वैल्यूअर ने, वो उन्होंने मान ली। अब दिक्कत कहाँ रही है हम जैसे आप जैसे वैल्यूअर्स को, कि जब रिपीटेशन रिवाइज वैल्यूएशन कराई जा रही है, जब आपके सामने वो उनकी वैल्यू रखी जा रही है, वैल्यूएशन रिपोर्ट रखी जा रही है, तो मौके पर वो मिल नहीं रही चीजें, तो आप या तो उसको डिनाई करो, डिनाई नहीं कर रहे तो आप खुद फंसने जा रहे हो, क्योंकि पिछला वैल्यू तो डिपेंडेंट हो गया, या वो आता है पूरी 34 AB की नहीं करता था पूरी, या वो IBBI पास नहीं किया होगा, तो उसको तो बैंक ने हटा दिया। अब फंसे कौन? आपसे कहा गया साहब इसकी रिवाइज वैल्यूएशन होनी है, 3 साल में होती है। जब आप मौके पे गए तो आपने देखा यार ये तो यार एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, डबल स्टोरी बिल्डिंग जो निकाल दी है। आपने मैनेजर पे कहा कि साहब ये तो गलत है, मैं नहीं निकाल पाऊंगा। वहां पे खेल शुरू होता है किसका? वहां पे खेल शुरू होता है न्यू कमर्स वैल्यूअर्स का। ये सर मेरा बड़ा अपना अलग अनुभव है, क्योंकि मैं फेस कर रहा हूं, मैं डेली, चूंकि 34 AB में भी है, बाकी और भी जनरल उसमें है, तो सरफेसी की वैल्यूएशन आती है मेरे पास, और मैं एक्सट्रीमली डिनाई करता हूँ। आज मैंने बहाना बनाना पड़ा कि आज मुझे बुखार है, मुझे पता था कि वो वैल्यूअर ने वैल्यूएशन जो की हुई है वो तो अलग हट गया, पैनल में है ही नहीं। अब आज मैं सरफेसी की वैल्यूएशन एंट्री अकाउंट की देने जा रहा हूं, तो मैं रिस्पॉन्सिबल हो गया हूं आज के बाद से, क्योंकि प्रॉपर्टी में घुसने को मिल नहीं रहा। मैनेजर बोला मैं जियोटेक की आपको अपने फील्ड ऑफिस से फोटो भेज देता हूँ, घर पर घुस नहीं पाऊंगा, बाहर से फोटो ले देता हूँ। मैंने मना कर दिया, लेकिन वो वैल्यूएशन हुई। तो बेसिक रीजन ये है कि जो न्यू कमर्स आए हैं डिप्लोमा होल्डर्स टाइप के, बैंक तो अपना मतलब है, बैंक तो कहता है साहब मुझे क्या पड़ी यार, आप लीगल एडवाइजर रिपोर्ट ओके दे रहा है, वैल्यूअर रिपोर्ट ओके दे रहा है, हमें लास्ट में ही तो लिखना है आई एम सेटिस्फाइड विद द वैल्यूएशन गिवन बाय द वैल्यूअर अमाउंट ही तो वो वेरीफाई करता। तो सर बेसिक चीज पकड़ने की बात यह है कि जितने भी न्यू कमर्स हैं, जितने भी अपने क्या कहते हैं नए डिप्लोमा होल्डर्स हैं, जो कि IBBI बिल इफेक्ट शुरू हुआ IBBI से, क्योंकि 60 नंबर लाई है, आपको ना कुछ करना, आपको कुछ नहीं करना, आपके समकक्ष आके वो खड़ा हो गया है कि IBBI। आप 34 की ABA की वैल्यूएशन वेल्थ टैक्स में आप रजिस्टर्ड हो पिछले 30 साल में, वो सब आपका बेकार हो गया, क्योंकि बगल में आपका 27 साल का एक लड़का खड़ा हो गया और उसने अपने ब्रेड बटर चलाने के लिए 2,500 में, 2,000 में, 1,500 में, क्योंकि उसे अपने पाँव जमाने। तो मेरा सर ये समेशन है, इसका कोई देखिए कि क्या चीज है, और मेरे बात से असहमत हो आप लोग तो थोड़ा सा प्लीज डिफाइन कीजिएगा। थैंक यू। नमस्कार जी सर, शुभाता विश्वास बोल रहा हूँ जयपुर से। मैं संजय गुप्ता जी से बिल्कुल सहमत हूँ, और मैं ही बोलने जा रहा था, मेरे ख्याल से 2017-18 के बाद से चीज बहुत डिटोरेट हुआ, ये फैक्ट है। ऐसे यूपी के बारे में मेरा ज्यादा आइडिया नहीं है, राजस्थान के आसपास की एरिया के बारे में कह सकते हैं। एक बात मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा संजय गुप्ता जी, देखिए ऐसा है, मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि हमको अपने अंदर भी झांकना चाहिए। यस राइट, यू आर राइट सर। तो यंग जनरेशन आए हुए हैं ना, वो काफी हद तक उसमें से कई सारे डेड रूट्स हैं जो लोग फैक्ट्री प्रोफेशन को खराब कर रहे हैं, और उनको जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। आपको पता है जनरेशन का हाल क्या है, क्योंकि आप लोगों के घर में उस उम्र के बेटा बेटी है, और वो कैसे बिहेव करता है, मैं नहीं कह रहा हूँ सबके बेटा बेटी खराब है,
हमको ही पता है सर, कितना कठिन होता है हमको संभालना, और ये तो प्रोफेशनल्स है। बट साथ में ये भी बहुत सही है सर, इस IBBI का जो सूत्रपात हुआ है सर, उसके लिए हम लोग ही जिम्मेदार है सर। हम लोग में से कुछ लोग नेतागिरी करके और करके इस IBBI का जन्म दिया, ये मानने पड़ेगा। शायद हम लोग और थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबली बिहेव करते, ये उस टाइम पे IBBI को आने नहीं देते, और शायद ये चीज देखना नहीं पड़ा। और दो चार फैक्ट और सामने रख रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं जो कहता हूँ बिल्कुल ही विद सब्सटेंस कर रहा हूँ। आप ऐसे अलग बात है। तो ये बात है, आज की तारीख में स्थिति ये है, मैं कई स्टेट में काम करता हूँ सर, और कई लोग मैंने कुछ पोस्ट करके दिया, बट उनके से मैं अलग से बात करना चाहूंगा। मैं अपने लिए कह सकता अभी तक मैंने 99.99% जो बैंक के वैल्यूएशन पे काम करता हूँ, मैं खुद विजिट करता हूँ। आई रिपीट, मैं 30 साल से काम कर रहा हूँ और 99.99 विजिट मैं खुद करता हूँ। ये उनके लिए कहना हूँ। दूसरी बात क्या है सर, ये जो वैल्यूएशन की जो काम हो रहा है, 2018 के बाद जो IBBI आया, उस टाइम पे हमारी मीटिंग हुआ था, ये जून साहब वगैरह उस टाइम पे थे, हम लोग सारे गए हुए थे, हमको कन्विंस करने आ गया था जैसा आप लोग IBBI कर दो। अनफॉर्चुनेटली मैंने अभी तक किया नहीं। हालत ये है आज की तारीख में, बाजार में बता रहा हूँ उसको, आज में मार्केट में जो काम निकल रहा है, अदर देन बैंकिंग हुआ, मैं आपको बता देता हूँ, वैल्यूएशन का जो बिजनेस है इंडिया में, वो few hundred crore का वैल्यूएशन बिजनेस है, मतलब लास्ट few crore का 100 crore की बोल सकता है, मैं फिगर तुम सही बोल रहा हूँ। उसका मात्र मतलब 4 से 5% काम बैंक वैल्यूएशन के थ्रू होता है। भारतवर्ष में जितना वैल्यूएशन के काम होता है, सब टाइप के वैल्यूएशन बात कर रहा हूँ, ऑल टाइप्स ऑफ वैल्यूएशन, नॉट अबाउट लैंड एंड बिल्डिंग, ऑल टाइप ऑफ वैल्यूएशन इंक्लूडिंग टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स, few thousand crores की है, और मात्र 4 to 5% जो वैल्यूएशन का काम होता है वो बैंकिंग वैल्यूएशन के थ्रू होता है। हमारी काम सबसे बड़ी प्रॉब्लम वैल्यूएशन के क्यों आ रहा है, हम उस सारे मिलके उस 4% के पीछे भाग रहे हैं और ओवर क्राउडिंग हो रहा है। बाकी 95% जो मार्केट है वो ऑलमोस्ट खाली पड़े हुए हैं, और आप लोगों को इस बात का आइडिया नहीं होगा, ये जो IBBI वैल्यूअर जिन्होंने किया नहीं, जिन्होंने उनके लिए दिन पे दिन सिकुड़ते जा रहे हैं वो। यानी मैं आपको कह रहा हूँ कि जिसके पास आज की तारीख में IBBI वैल्यूएशन का जो तकमा नहीं है, चाहे वो सारा 50 घंटा कोर्स करके और एक 60 नंबर लेके, आप बिल्कुल सही बात सही कह रहे हैं संजय गुप्ता जी, ये बकवास नॉनसेंस तरीके से ये इस टाइप का पास करके जो लोग सर्टिफिकेट ले रहे हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, ठीक है ना। मगर उसके लिए अपॉर्चुनिटी कम होते जा रहा है। आजकल बहुत सारे ऐसे टेंडर्स निकल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयमेंट निकल रहे हैं जहाँ पर आपके पास IBBI नहीं हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत सारे टेंडर्स यहाँ निकल रहा है जहाँ पर आपके पास 34AB प्लस IBBI दोनों को बुलाया जा रहा है, मगर जानबूझ के 34AB वालों को साइड किया जा रहा है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ उसको टीम पे डाला जा रहा है। तो ये संजय गुप्ता जी बिल्कुल सही कहा, और हमारे लिए 3 समय एक और सर मजे की बात, अभी क्या हो रहा है, बैंक्स क्या कहते निकाल रहे हैं कि सरफेसी वैल्यूज की आवश्यकता है। अभी कैनरा बैंक ने निकाला था, ठीक है सर, अभी निकला था, मतलब मई में अभी निकला रिसेंटली। मजा क्या आ रहा है, मजा क्या आ रहा है सर, आप लोगों ने फेस किया हो, मैं किया हो, आगे आके वो भी करेंगे। आप जब बैंक में जाओगे और आपका बाय द वे रेगुलर इम्पेनमेंट नहीं है, ओके सर, कैनरा बैंक की बात कर लो या किसी की भी, और आपका 34AB के सरफेसी वैल्यूज में आपका इम्पेनलमेंट हो गया, तो आपको वो रेगुलर काम नहीं देंगे और ना दे रहे हैं। वो कहेंगे आप तो सरफेसी, उसके लिए सरफेसी का केस आएगा, NP आएगा, तब आप करिएगा वैल्यूएशन। में सही हूँ, बताइए गिरीश साहब, बताइए, आप बताइए। आप बिल्कुल सही है, कैनरा बैंक में यही हो रहा है। यही हो रहा है सर, और आगे आने वाले समय में यही होना अपन लोगों के साथ। और जो अभी साहब IBBI की बात कर रहे थे ना सर, ये नहीं पता है कितने लोग IBBI पास करके बैठे हैं सर। IBBI वालों का हमारे साहू जी बता देंगे हाल खराब है, काम नहीं मिलता सर, और काम यदि जो देता है ना IRP, वो सर कहता है 50,000 रुपए का बिल करना, 35,000 रुपए वापस देना, 15,000 पकड़ना तुम। और वैल्यूएशन 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 1 करोड़ वैल्यूएशन दे ताकि मेरा केस हो जाए। तो ये कोई वो नहीं है जिन्हें हमने IBBI पास कर रखा, फर्स्ट बैच में 2019 में पास किया, आज तक 4 वैल्यूएशन करिए गिनती की।
नहीं सर, तो आपको बधाई कि आपको सब तरह के काम भी मिलेंगे, सर्किट भी मिलेंगे और रेगुलर मिलेंगे। कैनरा बैंक में सरफेसी में एक कैटेगरी में और रेगुलर में भी कैटेगरी में, एक ही बैंक में दो कैटेगरी वाले होगी बना दी। अब सोचिए सर कितने बजे की बात है। वही तो पूछे 8 साढ़े 8 9 बजे तक चलेंगे। देखिए सर, हमको मेरा तो एक ही सबमिशन ये है, हम सब सीनियर है, हमसे भी सीनियर लोग बैठे हैं, ब्रदर्स बैठे हुए हैं हमारे यहाँ पर। मैं तो एक ही सबमिशन बोलूँगा, देखिए सर, हम लोग सब लोग सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी क्या बोलते हैं हिंदी में, जो सबसे ऊपर होगा वही रहेगा सर। आज हमको इस मोटो को लेकर चलना पड़ेगा, वी हैव टू सर्वाइव एंड बिकॉज वी हैव टू सर्वाइव वी हैव टू बी फिटेस्ट। मेरे ख्याल से उसके अलावा हमारे सामने कोई रास्ता नहीं है। हम कितना भी व्हाट्सएप में बात कर ले, कितना भी हम वेबिनार से बात कर ले, कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर निकलता है, नो डाउट, दीज आर नॉट बैड थिंग्स, कुछ ना कुछ निकलता है, बट सर एंड ऑफ द डे सोल्यूशन सर हमको निकालना पड़ेगा। और इस बाजार है सर, दिस इज ब्लडी मार्केट, इसको हमको खड़ा होकर लड़ना पड़ेगा और हमको रास्ता हमारे निकालना पड़ेगा। यस, एसोसिएशन जो है 10 साल से लोग बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं, अगर सही मायने में मानने पड़ेगा। अदरवाइज मैं वो ज्यादा साल से जाके मैंने यूपी में कोई वैल्यू एसोसिएशन की मेंबरशिप नहीं ली, मैं सब देख लिया, मैंने मेरा पहुंच पूरा इंडिया में है, मैं सबकी एवरेज जानता हूँ कौन कहाँ पर है। मैं 10 साल है नहीं उसके सामने, उसकी मैं प्रशंसा कर रहा हूँ, ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन जो इस चीज को बेड़ा उठाए हैं। मतलब वो यूपी पीपल आर लाइक लकी है ना, अपने ऐसे बंदे को मिला हुआ है। बट सर मेरे सबमिशन ये है, हम इस तरह नहीं कर सकते, रास्ता सर हमको निकालना पड़ेगा और ये रास्ता बहुत कठिन है, ये बहुत ही कठिन है। और जितना दिन जा रहा है ये लोग सारे मैकेनिज्म बना रहे हैं 30 पर एरिया को बिल्कुल साइड कर दिया जाए। मैं आपको बताता हूँ जिन लोगों ने, मैं तो एकदम सही बता रहा हूँ, मैं तो पछतावा रहा हूँ, मैं हरिओम मेरे हिसाब से कर दिया, बहुत अच्छी बात है, कई लोगों ने कर लिया होंगे। और इस टाइम पे 2018-19 की बात कर रहे हैं, आई एम वन ऑफ द फूल्स जो कि शायद उस टाइम पे एग्जाम देके पास हो जाते। आज 7-8 साल हो गया, उस बात की 6-7 साल हो गया, आज कुछ अपॉर्चुनिटीज यूज कर रहा हूँ बिकॉज मेरे पास आईडीपीआई नहीं है। और ये बात मैं तुम सच बता रहा हूँ सर, मेरे को पता है अभी भी अगर काम नहीं मिल रहा है, बता दोबारा बता रहा हूँ, आप जीवन के अंदर काम ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको हालत नहीं होगा। और मैं जो कह रहा हूँ, मैं सर कह रहा हूँ 95% जो बाजार है वो खुला पड़ा हुआ है और वहाँ पर दूसरा किसी कंपनी काम कर रहा है और सिलेक्टेड वैल्यूअर्स फर्म काम कर रहा है, व्हिच इज अदर देन बैंक वैल्यूएशन। हमको वो चीज एक्सप्लोर करने पड़ेगा सर। बैंक का काम तो ही है, उसके अलावा भी बहुत सारे वैल्यूएशन के काम होता है, उसको हमें करना ऐसा ही 23 लोग है सर शुरू तो जी 45 मिनट हो चुके हैं। मंदिर से प्रसाद लेते हुए जाना, एक चीज है सर, सबसे बेहतरीन चीज है खाने पीने को सम्मान, तो मैं अपमान सम्मान काम ये कह रहे हैं कि खाने पीने का सबका ध्यान रखना, ये नहीं एनी कमेंट? सर इसमें वही चीज है कि प्रॉब्लम तो हमने डिस्कस कर लिया सर, बट हम इसके सोल्यूशन पे हम लोग कैसे, मतलब कुछ तो हमें 2-4 पॉइंट तो निकालने पड़ेंगे ना सर, सारे सीनियर्स मेंबर्स हैं और दिस इज नॉट ए वन डे इशू, मतलब आगे हमें इसमें करके इसमें एक लॉन्ग टर्म प्लान तो करना पड़ेगा। अदर एसोसिएशन के साथ भी हम लोग को थोड़ा सा एसोसिएट होना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट जो अदर ग्रुप भी काम कर रहे हैं, क्योंकि सर हमें मतलब मल्टीपल डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। देखिए बैंक पे हमारे कंट्रोल है नहीं सर, हमारे बीच के कुछ लोग हैं उनको हम डायरेक्ट कंट्रोल कर नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं एसोसिएशन के थ्रू ही हम लोग इसको करें तो बेटर हो सकता है, ऑर्गेनाइज वे में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े तो, क्योंकि अदर ग्रुप भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहा है। जैसे आप देखेंगे सर आजकल जो सीए है या अदर्स कई सारे ग्रुप्स हैं, उनकी भी एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन है चीजों को, तो उस तरह का हम लोग को लॉन्ग टर्म में रहना है और आप लोग तो काफी दिन से इसमें काम कर रहे हैं, तो कुछ हम लोग बेटर पे जा सकते हैं। प्रॉब्लम तो है
बट इन प्रॉब्लम के लिए हम लोग सोल्यूशन भी ढूंढना पड़ेगा सर, इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, उस पर थोड़ा सा हमें फोकस करना पड़ेगा। प्रॉब्लम तो सबको पता है सर, अब सोल्यूशन पे हम लोग थोड़ा सा कुछ डिस्कस करें, ब्रेनस्टॉर्म करें तो हमारे लिए बेटर होगा सर। मैं भी बैंक के साथ भी, जिनके अच्छे लिंकअप है, बैंक के साथ भी बात कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि बैंक भी इस पे कुछ बेटर सुझाव दे सकते हैं, जो बैंक मैनेजर से या जो सीनियर ऑफिशियल्स है उनके साथ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं सर। सर एक क्या कहते हैं बात आई थी बीच में कि सेल्फी लगने वाली बात, सेल्फी, तो उसका हम लोगों ने विरोध किया था कहीं ना कहीं, ठीक है ना। उसमें बड़ा इतना पॉइंट छुपा हुआ था उसमें कि बात आ रही ना कि बाहर के वैल्यूअर्स आके कर जाते हैं, वैल्यूएशन कर जाते हैं। यदि इस पे 100% अमल हो जाता तो क्या होता कि मैं कानपुर आके वैल्यूएशन नहीं कर सकता था, आता तो स्वयं आता, मेरे लड़के नहीं आते। ऑल ओवर इंडिया की प्रॉब्लम है सर। बिल्कुल सर। तो सेल्फी में हम लोगों ने विरोध किया कि नहीं सेल्फी नहीं। आप जब गलत नहीं कर रहे हो तो डर क्यों रहे हो सेल्फी के लिए? मेरा कहना है। बिल्कुल सर, नहीं सेल्फी के साथ है, आप जब जियो टैगिंग के साथ भी अपने मोबाइल से, आजकल तो सेल्फी नहीं भी लेते, जियो टैगिंग से अगर आप उस प्रॉपर्टी की फोटो भी लेते हैं तो वो सब चीजें भी हो जाएगी, कम से कम टाइम और ये सारी चीजें तो होंगी। देखिए जियो टैगिंग में तो जरूरी नहीं है कि आप ही जा रहे हो, लड़के जा रहे हैं ना आपके। हाँ ये भी तो है सर इसके। हाँ तो फिर वही बात है ना, हम पहले खुद हम सुधरना नहीं चाहेंगे। बड़ा मैं कौवा बोल रहा हूँ, हम सुधरना नहीं चाहेंगे, निकलेंगे तो बैंक को सुधारने। जिन लड़कों की बात कर रहे हैं ना संजय जी, हाँ जी, ये लड़के डायरेक्ट बैंकों में इनके कॉन्टेक्ट है, और मैनेजर इन्हीं को बुला के इनको देते हैं वैल्यूएशन भी, वैल्यू को बाद में पता लगता है। और कई जगह हो सकता है ये टप्पी मार वाला काम भी चल रहा हो। हाँ चल रहा हो सर, वो अभी बीच में पकड़ में आया था ना कि वो पैड उन्होंने बना लिया, सिग्नेचर हमारे कर दिया, हमारा असिस्टेंट था, ये भी हो रहा है। मेरा इसमें सजेशन ये है सर कि कोई भी वैल्यूएशन मार्क हो तो डायरेक्ट वैल्यूअर को मैसेज जाना चाहिए, मेल जाए या व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैनेजर उसको डायरेक्ट वैल्यूअर को करना चाहिए, ना कि लड़कों को। स्टेट बैंक ने सर अभी बीबीएम करके आप लोग भी यूज कर रहे होंगे, बीबीएम पोर्टल पे उन्होंने अलॉट करना शुरू किए हुए हैं, और उसकी आपकी एक आईडी बनाई है, हर वैल्यूअर की आईडी बना रहे हैं वो। ओके ठीक है सर, तो वो वैल्यूअर की जो लिंक है वो वैल्यूअर ही खोल पाएगा, उसका पैन नंबर लगा हुआ है, उसमें आधार लगा हुआ है, और वो क्या कहते हैं ऑटोमेटिक आपको अलॉट होगा तो ऑटोमेटिक आपके में आ जाएगा, वो आएगा तो थोड़ा उसको बीबीएम करके कोई उन्होंने किया है, मैंने पहली वैल्यूएशन डाली है अभी 5-7 दिन पहले। तो सर ये सभी में सिमिलर होना चाहिए ना, एक्शन यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए सभी में। हाँ यही क्या कहते नहीं, एसबीआई ने अपने इम्प्लीमेंट कर दिया है, बाकी लोगों को भी हमें प्रमोट करना पड़ेगा कि इस तरह के सिस्टम अपने यहाँ भी लाए। जी बाकी स्ट्रक्चर भी सब में यूनिफॉर्म होना चाहिए मेरे हिसाब से, ज्यादा बड़ा फॉर्मेट का भी चला था, यूनिफॉर्म फॉर्मेट की बात कर रहे थे, पहले कमेटी बनाई गई थी, वो कमेटी का भी पता नहीं इसका फॉर्मेट का क्या हुआ, उस फॉर्मेट का। सर फॉर्मेट का भी मुद्दा मैंने 2-3 साल पहले खुद मैंने ही उठाया था कि फॉर्मेट ही होना चाहिए, लेकिन वो कमेटी कमेटी बनी थी, उसमें सजेशन दिया था, मैं भी उसका पार्ट था फॉर्मेट कमेटी का। आप तेरा था मैंने फॉर्मेट हमने सजेस्ट किया था, फाइनल भी हो गया था, तो हमारी आईवा ने आगे भेजा भी है, शायद उसका क्या है पता नहीं इसका। हाँ भेजा सर भेजा। नहीं सर, एक चीज और जो इससे बीबीएम की बात कर रहे हैं सर, उस तरह का उन्होंने मतलब ऑनलाइन सिस्टम डेवलप किया है, तो जैसे आईवा भी है, तो आईवा भी जैसे होता है कि जो इसके फॉर्मेट अगर हम लोग चाहे तो आईवा के थ्रू भी किसी ऐप डेवलपर से हम बनवा सकते हैं कि स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट कर दे, और उसमें जो एडिशनल फील्ड है वो ड्रॉप डाउन में एक्स्ट्रा डलवा दे हम लोग, तो फ्यूचर के लिए भी मतलब वो मतलब एक बार ठीक है इन्वेस्टमेंट तो होगा, बट एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट हो जाएगा जिसको सारे लोग इजीली कर भी पाए सर, और सभी बैंकों में और सभी बैंकों में एक हो जाए। सर हमसे अच्छा कौन फॉर्मेट बनाएगा? जो पिछली बार फॉर्मेट बनाया था वो हमने सजेस्ट किया था। हाँ बिल्कुल बनाने की बात कर रहे हैं, वो हमसे अच्छा फॉर्मेट जो हम लोग 20-25 साल के लोग एक्सपीरियंस वाले यहाँ बैठे हैं, तो हमसे अच्छा फॉर्मेट कौन बनाएगा? नहीं उस फॉर्मेट को डिजिटलाइज कर दें सर, मैं उसको चेंज नहीं कर, डिजिटलाइज कर दीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा सर।
सर वो और मुसीबत है हमारे यहाँ। एक जो है एक कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, शायद आपको पता नहीं होगा, उनके जो रिपोर्ट जा रही है वो स्टैंप पर साइन जो फोटोकॉपी स्कैन कर लगा रहे हैं और बैंक से एक्सेप्ट कर रहे हैं। बैंक वाले को हमने दिखाया कि भाई स्टैंप लगा कर ऊपर से साइन चिपकाए गए हैं, साइन स्कैन करके और फिर वो प्रिंट निकालते हैं उसका। वो बंदा बैठा मुंबई में, साइन हो रहे हैं, रिपोर्ट साइन हो रही है दिल्ली में। डिजिटल साइन भी कर सकते हैं। नहीं, डिजिटल साइन भी तो कहीं से हो सकते हैं सर। डिजिटल साइन में तो नहीं है ना। मुंबई बैठ साइन करेगा, लड़के यहाँ वैल्यूशन करके वो शायद मुंबई बैठ साइन करेगा। तो डिजिटल साइनिंग तो और मुसीबत की जड़ हो जाएगी। नहीं, बट एक चीज ये हो सकता है ना कि सम पेरिफेरी उसको किया जा सकता है कि मतलब कुछ लिमिटेड जोन कर दिया जाए, उस जोन के बाहर नहीं जाना है। सब लोग क्या करेंगे, लिमिटेड जोन, जैसे कानपुर जोन के लोग कानपुर में काम करेंगे, मुंबई वाले मुंबई के आसपास काम करेंगे। कुछ रिस्ट्रिक्शन तो देना पड़ेगा हमें ना सर। ऐसे तो नहीं होगा कि मैं ऑल इंडिया फ्री हैंड घूमता रहूं। थोड़ा सा मतलब अगर हम ज्यादा उसको सर आप सही कर लेना, एक स्थापत्य करके कंपनी रजिस्टर्ड हुई है। क्या नाम सर? कानपुर जोन बैंक ऑफ बड़ौदा का कानपुर जोन झांसी तक है। स्थापत्य करके कंपनी रजिस्टर्ड हुई है अच्छा सर। इंडिया में। सर मैं कह रहा हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा का जोन कानपुर का जोन झांसी तक है सर। नहीं ठीक है सर, तो दिल्लीपुर तक है। अरे सर तो मुंबई वाला तो आके नहीं करेगा ना वहाँ पे सर। यूपी का तो फिर भी ठीक है। अब यहाँ तो सर प्रॉब्लम हो रही में भी दिक्कत हो रही तो आदमी करेंगे कानपुर जोन है। नहीं सर, कुछ तो हम मतलब दायरा तो हमें फिक्स करना पड़ेगा ना। 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर कहीं कुछ तो एक रेंज तो लेना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं कुछ चीजें छूटेगा, कुछ चीजें आएंगी सर। कभी कभी कोई प्रॉपर्टी होती है बाहर के जोन की। दुनिया के किसी कोने में भी जाके करे, लेकिन खुद जाके करे। हाँ तो उसमें कोई इशू नहीं है। अगर वो खुद जाके करता है तो नहीं तो कंट्रोल मैकेनिज्म चाहिए सर। लोगों से कराता है। आजकल जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 34 एरिया में रजिस्टर है, ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी काम करते ऑल ओवर इंडिया कहीं का भी काम करिए, लेकिन खुद करिए जाके। मैं आंसू जी से सहमत हूँ। सर नहीं है। हमारी मीटिंग में इस वक्त 21 लोग हैं। हम 21 लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो सेल्फी लगाने के मूड में नहीं होंगे। छोटी सा 21 लोग वोटिंग करके देख लीजिए। नहीं बेटर है कि हम लोग खुद इनिशिएट करें सर। नहीं इस जो अगर हम लोग एक्चुअल कर रहे हैं तो हम लोग खुद इसको इनिशिएट करें सर। फिर बाद में उनके पास देखेंगे सब हम एक कर रहे हैं, उसमें अपने एक लगा रहे हैं हम चीजों के साथ। लगाई रहे वो खुद लगाते हैं, लेकिन जो टैक्स खुद नहीं करे वो सेल्फी नहीं लगेगी। इसी वजह से लोग बना के स्टाफ रखते हैं और जहाँ जहाँ वहाँ काम करते हैं। एकदम सही कहा सर आपने। जब लगाना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम साहब नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि बैंक हमारे बड़े का हमारा जो क्लाइंट है ना वो हमको फीस देने के वाला वो गलत आती है। हमारा क्लाइंट चेंज हो गया। हमारा था बारोवर, वो आता था हमको फीस। हम लोग पुराने लोगों जो 90s के समय चले आ रहे हैं उन लोगों को 2007-8 के बाद ये सब चालू हुआ है। पहले हम लोगों को बार-बार हम लोगों के ऑफिस आता था, वेरीफाई कराता था और जाके वहाँ सबमिट करता था बैंक में बैंक की होती हमको फीस लेके जाते। अब क्या है, तब से नहीं बने थे आस्तोर जी तब से नहीं बने थे। वही तो मैं बता रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं बने थे, नहीं बने थे बैंक के लिए क्यों हम बार-बार के लिए काम करते हैं। और ये सिस्टम फिर से लौट के आएगा। कभी ना कभी गवर्नमेंट या बैंक वाले समझेंगे, बैंक वाले बीच में हमको फीस चाहते कि मेरे हिसाब से काम। पहले हमारे पास ये बंदिश नहीं होती, फीस हमको मिलती थी, हम स्वतंत्र रूप से काम करते थे। आपको लेनी हो लोग, मैं 10 लोगों को पैसा दो, 10 लोगों से निकलवा लो। पहले बार्गेनिंग करता है, तुम कितना दोगे, तुम कितना दोगे, तुम कितना दोगे, फीस तो किसी को देगा नहीं, फीस तो सबसे पूछता रहेगा। पहले हमको पूछने के भी पैसे मिलते हैं। हमारा जब हम बारोवर के लिए काम करेंगे ना तब परिवर्तन आएगा। ये परिवर्तन आएगा ऑटोमेटिक, जैसे प्राकृतिक बदलती है ना तभी बदलेगा।
मुझे ऐसा मानना है कि सबसे बड़ी दिक्कत हमारे सर इसमें मैंने गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, ये एसोसिएशन जो हम गवर्नमेंट से कहें मेरे क्लाइंट का नाम चेंज करो, बैंक ना होना, बैंक मेरा क्लाइंट होगा तो हम आपको अच्छे से नहीं दे देंगे। गवर्नमेंट के लिए काम करते 34 AB रजिस्टर्ड है। जी बोलिए सर एक मैं चीज कहना चाह रहा था, जो फीस वैल्यूअर को मिलती है वो बोरोवर से ना लेके बैंक खुद अपने उससे पे करे, क्योंकि बैंक जो है लोन देता है किसी को तो उसमें उसको बिजनेस मिल रहा है ना, तो वो बैंक पेमेंट वैल्यूअर की बैंक क्यों देता जो कि निर्धारित फीस है। नहीं सर, आप बैंक से आप नहीं लड़ सकते सर। देखिए सर, बैंक वेल स्ट्रक्चर्ड है, वेल क्वालिफाइड, उनके वेल प्रोफेशनल उनके पास है। आप उनको इस तरह से इंडिविजुअल या छोटे ग्रुप के साथ उनको नहीं डिफेंड कर सकते। उनको करने के लिए मैंने जैसे बात हो रही थी ना कि आईवा की तरह जितने ग्रुप्स हैं इनका भी एक इंटरनली मीटिंग कराई जाए, इन चीजों को सिस्टमैटिक ढंग से रखा जाए सारे बैंक के हेडक्वार्टर्स में। सर वही बेस्ट ऑप्शन है सर। सर फेडरेशन लोग बना रहे थे, उसमें आईवा के मेंबरों ने जाने से मना कर दिया। फेडरेशन है, आईवा के मेंबरों ने जाने से मना कर दिया। नहीं सर, देखिए दो चीजें, आईवा की तरह जितनी ऑर्गेनाइजेशन है मतलब बैठ के बात तो कर सकते हैं ना सारे चीजों को एक मुद्दे पे, सारे फेडरेशन उसी को दे, सारे ग्रुप को सेम चीजें प्रपोजल कर आगे बढ़े। सर पहले फेडरेशन बनेगी तभी तो फेडरेशन में बैठ के बात करोगे, बात डिस्कस करने वाली है। पिछले सेमिनार में सर आप लोगों को शायद अवेयर नहीं है, पिछले सेमिनार में हमने दास साहब से बैठ के डिस्कस करी थी, वहां से आए थे हैदराबाद से डिस्कस करने के लिए, स्पेशली किस पर्पज के लिए आए थे। अब वो आईवा की कमेटी ने क्या डिसीजन दिया 11 आपस में, ये अभी कोई डिस्क्लोजर नहीं है हमारे पास। नहीं, उनकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी ना, फेडरेशन वाला तो उनकी क्या स्ट्रेटेजी है तो उन्होंने नहीं बताया। दूसरा जो है वो पैसे मांग रहे थे, पैसे किस लिए मांग रहे थे? पैसे किसे मांगे? बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप, पैसे किसी ने नहीं मांगे। पैसे मांगे गए हैं, पैसे मांगे नहीं, पैसे नहीं मांगे, आप गलत कह रहे हैं सर। नहीं मांगे नहीं, बैठ कर डिस्कस करने की बात हुई थी, पैसे की बात बिल्कुल नहीं है। हम लोग कमेटी के मेंबर हैं, मुझे पता है कि पैसे मांगे गए। कहीं पर मिसकम्युनिकेशन है, वो वैल्यूअर एसोसिएशन ने मांगे होंगे तो फेडरेशन वालों ने पैसे नहीं मांगे। मेंबरशिप की बात हुई थी कि जो भी एसोसिएशन जाएगी वो 50,000 रुपए की मेंबरशिप देगी, एसोसिएशन पूरी एसोसिएशन के लिए, ना कि इंडिविजुअल मेंबर्स के लिए। हाँ तो मेंबर मतलब वही एसोसिएशन क्यों दे? सवाल ये है ना कि क्या उनकी रणनीति क्या है, कहाँ वो खर्चे करने हैं। सर ये बैठ के बात करोगे तभी तो पता चलेगा ना। हमारा आज का वीडियो जो है देखेंगे और उनको सब पता है, वो कल अपडेट करेंगे कल परसों। ठीक है, कोई बात नहीं सर, इसमें क्या है ना कि हम लोग एक कंस्ट्रक्टिव वे में आगे बढ़े सर, कोई दिक्कत नहीं है। पैसे तो पहले मांग नहीं रहे होंगे सर की सर। इसमें जो है अभी 1 जुलाई से कैनरा बैंक ने एक सर्कुलर निकाला है कि 1 जुलाई से बैंक ऑफिसर और वैल्यूअर और उसका जो है डिजिटल सिग्नेचर मतलब दोनों का फोटो होना चाहिए। और मुझे नहीं पता कि सैलरी का पहले पीएनबी ने निकाला था, पंजाब नेशनल बैंक ने, लेकिन जो है किसने विरोध किया मुझे तो नहीं पता, उन्होंने अपने आप खत्म कर दिया उसको। वो अच्छा एक काम था, बिल्कुल अच्छा काम था। तीसरी चीज ये है कि यदि बैंक वाले हमें लेटर लिख देते हैं और उनके मनमाफिक वैल्यूएशन नहीं होता तो वो जो है दूसरे का वैल्यूएशन ले लेते हैं। तो कुछ बैंक की अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए ना, पहले वो हमें लेटर दें तभी हमारे वैल्यूएशन की इंपॉर्टेंस होगी, नहीं तो वो डस्टबिन में डाल देते हैं। और तीसरी चीज ये है, चौथी चीज ये है यदि जो है कानपुर का वैल्यूअर झांसी आता है या झांसी का वैल्यूअर लखनऊ जाता है तो इस पे जो है वो क्यों नहीं, जो ऑडिट वाले क्वेश्चन क्यों नहीं उठाते? जब किसी शहर में 4 वैल्यूअर आपके बैंक के पैनल पे हैं, व्हाई डू दे इंपोर्ट वैल्यूअर? एनबी ने सबसे पहले निकाला था सेल्फी का। हाँ, एनबी ने सेल्फी का निकाला था सबसे पहले। वो तो मैं कह रहा हूँ तो वैल्यूअर्स ने अपॉइंटमेंट किया, एनबी ने अपने आप वापस नहीं लिया। सर मेरा एक छोटा सबमिशन, मेरा ये मतलब है कि ऑडिट डिपार्टमेंट बैंक्स के क्या कर रहे हैं, वो क्यों नहीं इस बात पर पूछते हैं कि यदि जो है आपके शहर में 4 वैल्यूअर हैं, 6 वैल्यूअर हैं पैनल पे, तो आप बाहर के सिटी के वैल्यूअर से क्यों वैल्यूएशन करवा रहे हैं? दे हैव टू जस्टिफाई। और इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से टेकअप करना चाहिए। सर
जो भी चीजें, देखिए दो चीजें हो रही है सर। अभी हम लोग बैंक को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बैंक हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम उन पे बात करें सर जो हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में, हमारे कंट्रोल में। हम आप एक दूसरे को अगर हम कन्विंस नहीं कर सकते सर, तो बैंक तो हम कभी कभी कर ही नहीं सकते। देखिए बैंक का एक अपना स्ट्रक्चर वे में है। बैंक से कुछ कराना हो, एक बैंक मैनेजर को डरा धमका के आप करा सकते हैं कुछ चीजें, लेकिन उस सिस्टम को, बैंक को आपने हिला नहीं सकते सर। मेजर कंसर्न है कि जितने वैल्यूएबल है सर, इनको यूनाइट करना सही एथिक्स के साथ ज्यादा बेटर है सर, और ज्यादा इजी है। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं सर ना। क्या आप हाइपोथेटिकल सर तो वैल्यूएबल को आप ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, तो म्यूनिटी कर लें, ये बता दीजिए कैसे कर सकते हैं आप? सर तो आपको क्या लगता है सर? नहीं सर, बैंक को करने में बैंक को कर सकते हैं सर। अब मैं दूसरे में बात कर रहा हूँ सर। बैंक वाले क्वेश्चन का ऑडिटर की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास राइट टू इंफॉर्मेशन है सर। आरटीआई के थ्रू हम पॉइंट रेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें। नहीं, आरटीआई एक हमारे पास प्लेटफॉर्म है। आरटीआई के थ्रू आप एक सिंपल किसी भी सरकारी बैंक को, नेशनलाइज बैंक को एक कर दीजिए, एक क्वेश्चन मांग लीजिए कि आपके यहाँ जितने एक साल में वैल्यूएशन हुए इस फाइनेंशियल ईयर में, कितने वैल्यूअर लोकल ने किया है, कितने ने बाहर किया है, उन वैल्यूअर के हमें एड्रेस दे दो। ये आएगा सर नहीं, इसको शुरू कर सकते हैं सर। मतलब इस तरह के कुछ, देखिए मेरा एक है कि कंस्ट्रक्टिव स्टेप सर। बाहर का वैल्यूअर आके यहाँ करता है, मोटा ही बाहर के वैल्यूअर के बनते आके काम करते हैं। बाहर का वैल्यूअर अगर सर तब लोन, उसका लोन बाहर का बंदा कैसे आता है? थोड़ा दिन यहाँ पे दे रहा लोन होना उसका झांसी में, और प्रॉपर्टी है कानपुर में, तो झांसी का ऑफिसर ही तो अलॉट करेगा ना बंदे को कि जाके वहां से करा के ले करके आ जाओ, तो उसमें वो क्या तो सर हम नहीं, मैं इसमें एक थोड़ा सा बता देता हूँ सर। नहीं सर, अरे मैं बता रहा हूँ सर, मैं इसके लिए थोड़ा सा मैं सर नहीं सर, इसको जगह झांसी वाला वैल्यूअर कानपुर में आके कर रहा है, तो अगर एक्चुअल वैल्यूअर आ रहा है तो पूरा एक दिन खर्च करना पड़ेगा अपना टाइम सर। सर नहीं तो पैसे कम नहीं होगा ना, क्यों आ रहा है? कम करेगा फिर, लेकिन सब निगोशिएट नहीं करेगा, मुझे जाके दिल्ली करना तो क्यों आ रहा है? नहीं सर, आने दीजिए, नहीं आने दीजिए सर। अरे सर आप झांसी से यहाँ आएगा तो उसके खर्चे भी तो होंगे सर। बिल्कुल नहीं, जब आएगा तो पैसे लेगा सर, तो पैसे लेगा बात फिर वही हो जाएगी, तो हमारे लिए दिल्ली का काम आएगा, दिल्ली तो पैसे लेंगे, तो रेट तो कम होगा ना सर। कमी है जो झांसी से आएगा, क्यों बुला रहे हो सर? तो सर नहीं सर, बंदे को भेजेंगे तो सस्ते में काम कराएंगे ना सर। बंदा जाएगा तो सस्ते में काम होगा, हम जाएंगे तो वो जो है ब्रांच मैनेजर को जस्टिफाई करना चाहिए कि उन्होंने क्यों बुलाया बाहर से, यदि जो है लोकल वैल्यू अवेलेबल नहीं, मैं सिंपल सर, देखिए अब हम लोग इसको को सेल्फी लगाना इम्पोर्टेंट है, और सेल्फी से ये प्रूफ होता है कि वो खुद गया है वहाँ पे, ऑर्डिनेट से प्रूफ नहीं होता है। ठीक है सर, एक पॉइंट कंक्लूड हो गया ना कि सेल्फी के साथ आगे बढ़े सर। सर हमने इंटरनेशनल वैल्यूएशन करी है, और जो वहाँ का कंसल्टेंट हायर किया ना सर, डॉलर में फीस दी है उसको। हाँ तो ग्लोबल जमाना है सर, उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, कोई भी कहीं कर सकता है। ऑल वर्ल्ड की बात है, अभी तो हम इंडिया कानपुर की बात कर रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ क्या, देखो बिल्कुल कोई जाके जो बड़ी जो कंपनियां हायर की हैं, यहाँ बैठ के हम बातें बहुत कर सकते हैं, उनको क्रॉस नहीं कर सकते हैं। और रही सवाल बैंकर को, तो बैंकर का उनका सिस्टम बना हुआ है, वो सिस्टम में जाएंगे, जो उनका बैंक कहेगा उस सिस्टम में रहेंगे वो। तो हम यहाँ बैठ के डिस्कस करें कि बैंक को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, उसको तो वो करेगा जो उसका सिस्टम कहेगा। और उसको बैंक से पेमेंट इसलिए नहीं हो सकता कि उसको बैंक को ज्यादा प्रॉफिट दिखाना है,
जो लोन नहीं होते हैं तो कहते हैं मैं फीस नहीं दे सकता, लोन नहीं हुआ। बट यदि कंपलसरी हो जाएगा बैंक से डेबिट करके देना तो उसकी बैलेंस शीट नीचे जाएगी, वो कभी नहीं बैलेंस शीट को अपनी डाउन करना चाहेगा। तो ये जो बात कही गई है बैंकों से फीस होनी चाहिए, प्रैक्टिकल नहीं हो सकती। उस केस में नहीं होता। नहीं सर, इसको सर एक अगर हम लोग समअप कर रहे थे तो एक तो हो गया कि सेल्फी वाले सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया जाता है, पहला सोल्यूशन, जिससे कि हम जो फेक हो रहा है उसको कंट्रोल किया जाए। पहला तो ये है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा सर समअप में? पहला पॉइंट तो ये है, सोल्यूशन पे हम बात कर रहे हैं सर, प्रॉब्लम तो बहुत सारी है। पहला सोल्यूशन ये है कि हम सेल्फी को करें, प्रमोट करें सर, और इसको हम रेगुलाइज करने की कोशिश करें। पहला पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट में सर क्या रखना चाहेंगे हम लोग? दूसरा पॉइंट ये है कि ब्रांच मैनेजर या जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो वो जस्टिफाई करे कि वैल्यूअर्स के उस पर्टिकुलर सिटी में कुछ वैल्यूअर्स हैं, उनके रहते हुए बाहर के शहर से क्यों बुला रहा है, ही हैज टू जस्टिफाई दिस। नहीं तो एक क्वेश्चन कौन पूछेगा सर? बैंक मैनेजर से। नहीं, बैंक मैनेजर से हमें और बैंक मैनेजर हमें जवाब वो नहीं है, इसके लिए जवाबदेह नहीं है हमारे लिए। मुझे नहीं लगता कि जवाबदेह है। बोलिए सर, आप कुछ कह रहे हैं सर? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अरुण जी, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? सर मैं बता रहा हूँ, ये अब ब्रांच मैनेजर अगर ये बताएगा कि शहर में वैल्यूअर है, मुझसे नहीं करा सकता। अगर वो ब्रांच कहीं और है, जैसे एग्जाम्पल दिया, ब्रांच मान लीजिए ललितपुर में है और प्रॉपर्टी कानपुर में है, तो वो आसपास की टेरिटरी के वैल्यूअर को पकड़ेगा, उसको भेजेगा कि कानपुर के वैल्यूअर को ढूंढेगा जिनको वो जानता ही नहीं है। देखिए, जानने का तो ऐसा है कि किसी भी बैंक का जो पैनल है वो पूरा जो है साइट पे रहता है और सबके पास रहता है। जब कोई ये कहता कि कानपुर वाले वैल्यूअर ने ललितपुर वाले को बुला लिया, कानपुर में जब थे चलिए सर, ए पॉइंट को हम अभी वो करते हैं, डिबेटेबल पॉइंट हो गया, हमें लोग नहीं सहमत है सर। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या कर सकते हैं सर? मेरा तो एक सेल्फी के आगे हम लोग दूसरा पॉइंट पे करें। देखिए सर, हम लोग कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन पे चले या हम अगली बार तक के लिए कुछ सोल्यूशन इकट्ठा करें सर, क्योंकि जिसमें सारे लोग एक मत हो सर और बेस्ट सोल्यूशन की तरफ बढ़े सर। तो इसमें आप सोच लीजिए कि जो आपने बात कही है वो संभव है कि नहीं, और जो मैंने कही है तो याद कर लीजिए, क्योंकि अगर बंदा अपने शहर के बंदे को काम तभी दे सकता है ना जब वो शहर का है, तो उसने सही तो किया अगर वो कानपुर के बंदों को कानपुर शहर के काम करा रहा है तो ब्रांच है। रोटेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ वर्क के लिए देखा जा सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा तो बात अलग है, कानपुर वाला चिल्लाता है कि बाहर वाला बंदा आ गया। हाँ, यह बात आप सही कह रहे हैं सर। नहीं, ये जो है ना वर्क अलॉटमेंट वाली आप बात कर सकते हैं कि एक बैंक के पास अगर 20 वैल्यूअर रजिस्टर्ड है तो मिनिमम एक सबको दिया जाए, या जो भी है इसकी थोड़ी सी रीबैलेंसिंग की जाए कि मतलब ऐसा नहीं एक को 10 दे दिए और बाकी 10 को एक भी नहीं दिए। इसको हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये दो, थैंक यू सर। तो ये 2 पॉइंट हम रख सकते हैं सर, 2 पॉइंट हम लोग कर सकते हैं कि इसको लिए हम लोग और सारे वैल्यूअर मिलकर बात करेंगे, क्योंकि देखिए ना रहना सबको साथ में ही है सर, क्योंकि हमारा कंपटीशन सर आपके साथ नहीं है। तो 2 पॉइंट तो आ गया सर, और नेक्स्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं सर? यस सर, यस सर। एक मिनिमम अमाउंट लीगल के लिए वो बारोवर से पहले ले लें, विदाउट गोइंग अहेड हम वैल्यूएशन पे जाएं या लीगल रिपोर्ट पे जाएं, बैंक एक टोकन मनी कम से कम बारोवर से लेके 2,000 होता है, उतना पेमेंट वो या लीगल वाले को देते हैं। तो इस हम लोग बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बैंक को हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सर एक चीज ये नहीं कि बैंक का जो मैकेनिज्म है सर ना, वो बैंक की अपनी गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को चेंज करना नॉट ए टास्क, उनके लिए अपने कुछ रूल रेगुलेशन है। हम एप्लीकेशन करने को पहले ही 5,000 की चेक ले लेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। नहीं तो आप सर काम के बाद तो पैसे दे नहीं रहे, एडवांस भी कौन दे रहा? बैंक को पता नहीं ना, एसएमएस है वो 5,000 चेक तो पहले दे, बार-बार जब तक आपका काम हो या ना हो। अच्छा, ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अधिकतर बैंकों के इम्प्लीमेंट के लेटर में लिखा होता है कि बैंक को एक अपॉइंटमेंट लेटर इशू करेगा, लेकिन बावजूद बैंक इस गाइडलाइन पे काम नहीं करता। तो उसके चैलेंज कर सकते हैं
सर यहाँ पे नहीं तो क्लाइंट जो है ना बहुत गंदा है। हमारा क्लाइंट बरोबर होना चाहिए। नहीं सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कितने लोग अवेयर है कि बैंक ऑफ इंडिया का रिवाइज सर्कुलर फीस का जो आया है, उस रिवाइज सर्कुलर को अभी एनसीआर आरओ का गुड़गांव में उन्होंने इशू किया था, जिसमें 1.5 लाख रुपए तक की फीस है और मिनिमम फीस जो है बेयर मिनिमम इंस्पेक्शन फीस की 5,000 रुपए की रखी गई है। अपॉइंटमेंट लेटर में लिखे होने के बाद कुछ ब्रांचों ने अलग से लोगों से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उन्होंने मैक्सिमम फीस 5,000 रुपए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मैनेजरों ने जाकर अलग से। अब वो लोग काम कर रहे हैं, हमारे देश से ज्यादा फीस मांगते हैं, वो बाहर बैठे हैं। बिल्कुल बैंक ऑफ इंडिया वाले हमें बाहर करके बैठे हैं सर, उन्होंने मना कर दिया। नहीं तो सर अब बैंक ऑफ इंडिया का आप क्या करेंगे सर? 3,000 पड़ रहा है, 3,000। देखिए सर, मैक्सिमम फीस 1.5 लाख रुपए कर दिया उन्होंने। उसमें सामने इम्पेनमेंट लेटर में बंदे के भी लिखा हुआ है और वो 2,500 रुपए काम कर रहा है। क्या कर सकते हो आप उनका? सर मैं एक चीज ये कहना चाह रहा हूं कि हम लोग जो हमारे कंट्रोल में, हम लोग वैल्यूअर को यूनाइट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मार्केट में 100 में से अगर 10 नॉट एथिकल है या उनका सही नहीं वर्क कल्चर नहीं है तो हम कोशिश करें उनको सॉर्ट आउट करें सर। 90 अगर एक साथ रहेंगे उन 10 को हम इजिली सॉर्ट आउट कर सकते हैं सर, जो हमारे कंट्रोल में है। हम बैंक को कंट्रोल करने की कोशिश करें, बैंक नहीं होगा। जैसे मिनिमम रेट अगर फिक्स किया जा रहा है, मिनिमम रेट बढ़ाया जा रहा है, तो सर अगर जो 5,000 है तो अगर 5,000 में अगर मैं काम कर रहा हूं, पता चला मुझे 2 काम करना पड़ रहा है, हमें एक ही काम का पैसा मिल रहा है, तो वो तो बेटर है ना सबके लिए। भाई हम 10 2,500 में करें या हम 5 ही कर दें 5,000 में। देखिए हमारी लड़ाई में फायदा बैंक हो रहा है, बैंक को बेनिफिट हो रहा है, तो हम जितना लड़ेंगे बैंक उतना बैंक हमें कुछ ना कुछ रोज नए चैलेंजेस देगा, तो हम उन चैलेंजों से मतलब निकलना पड़ेगा ना सर। हमें टैक्टफुली डील करना होगा। देखिए सर, अपने ग्रुप में सारे लोग वेल एक्सपीरियंस, वेल एजुकेटेड, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारे लोग सही है, बट हमें इसको एक राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ना पड़ेगा सर, जो मेरा अपना मानना है सर। मजेदार बात है, प्रॉपर्टी की कीमत करोड़ों में जा रही है और वैल्यू कम हो रही है। तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा आईना है ना सर, कि हम कर क्या रहे। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है वैल्यूअर की। इंडेमनिटी साइन करना है, ये करना है, ये क्लॉज साइन करना है, क्रिमिनल ऑफेंस का क्लॉज साइन करना है, बढ़ती जा रही है वैल्यू। कम निकलने वाला है सर। रिस्क आप ले रहे हो, मजे कोई और ले रहा है सर, रिस्क आप उठा रहे हो। तो सर इसमें अभी 2 ही पॉइंट हम लोग सर कंक्लूड कर पा रहे हैं सर। एक तो सेल्फी वाला था और दूसरा रोटेशन ऑफर। तो आगे सर हम लोग ग्रुप में है कि अगर किसी को बेटर आइडिया है सर उसमें डाल सकते हैं, वहां से हम लोग समूह कर सकते हैं सर। बीच में बाद में लोग थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करें तो कुछ बेहतर सोल्यूशन आ सकता है सर, उसको अच्छे से रिप्रेजेंट भी हम लोग कर पाए सर। बेटर यही होगा सर। एक बात मैं कहना चाहूंगा सर, ये जो सब्जेक्ट कह रहे थे जानकारी पॉइंट रेज किया, इसमें एक बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है आपको सोचने पड़ेगा कि हम प्रॉब्लम का जड़ में जाने पड़ेगा, प्रॉब्लम और सारे प्रॉब्लम को पूरा उसको सॉल्यूशन जरूर निकाल सकते हैं। तो बार बार कह रहे हैं वो ये है मेजॉरिटी जो हम अलॉट हो रहे हैं सबके पास और व्हाट्सएप पे आ जाता है काइंडली डू वैल्यूएशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट या फोन कॉल करके बुला लेते हैं। जबकि हर एम्प्लॉयमेंट लेटर के अंदर ये मेंशन किया हुआ है कि साहब बाकायदा प्रॉपर ईमेल या प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेटर, तो अपॉइंटमेंट लेटर पॉसिबल नहीं हो तो कम से कम जैसे अभी डील में लगा दिया ये और ये बात बिल्कुल सर। मैं थोड़ा सा इंटरफेयर करना चाहूंगा इस मैटर पे। सर मेरी नजर में 5 बैंक ऐसे हैं जिन्होंने 2017 से इम्पेनमेंट का इशू नहीं करे और काम कर रहे हैं हम लोग उनका। स्ट्रक्चर रिवाइज आ गए उन्होंने सुन लें सर, बैंकों ने इम्पेनमेंट का इशू नहीं करे वैल्यूअरों को, क्योंकि रिवाइज फीस स्ट्रक्चर आ गए और उन्होंने कहा हमने ब्रांच को लिस्ट भेज दिया, वहां जाकर काम ले लो, काम करो।
क्योंकि इम्पेंडमेंट लेटर देंगे, आप तो ब्रांच से लेटर देने की बात कर रहे हैं, वैल्यूअर को इम्पेंडमेंट लेटर नहीं मिल रहे। सर ऐसा है कि बात करें हम ना, बिना बिना अपॉइंटमेंट लेकर काम करेंगे तो पैसा तो मिलने से वहां से बेसिकली बात ये है। जब मुंह जुबानी बात करेंगे तभी तो इनका अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना। ब्रांच मैनेजर मुंह जुबानी बुला लेते हैं, तो लक्ष्मीपुर खीरी का वैल्यूअर को बुला लिया, कभी कानपुर का प्रॉपर्टी है तो झांसी के वैल्यूअर को बुला लिया, और नहीं तो दिल्ली के वैल्यूअर को बुला लिया। ये तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। ये तो होता है अपना फॉर्मल चीज होता है। ये जो एसोसिएशन का ये चाहिए, जो मुकेश जी जो पॉइंट असॉर्ट कर रहा है उसमें ये होना चाहिए, एवरी वैल्यूअर मस्ट बी अवॉर्डेड विद अपॉइंटमेंट ईमेल एटलीस्ट। आपके पास ईमेल अच्छी तरीके है, बैंक के पास ऑफिशियल ईमेल आईडी है, हमारे पास ईमेल है, एक ईमेल तो लिख सकते हैं सर। मैं आपको बता देता हूँ, जो आप लोगों की हेड ऑफिस है सिडवी SIDBI स्मॉल स्केल, वो लोग हर अपॉइंटमेंट लेटर बाकायदा मेल में आता है। जो लोग सिटी के वैल्यूअर यहाँ पर है, क्योंकि उसके हेड ऑफिस लखनऊ में है, मैं आपको बता देता हूँ, उनका जितना अपॉइंटमेंट लेटर आता है बाकायदा ईमेल आता है उनका। बिना ईमेल के कोई अपॉइंटमेंट का इशू नहीं होता है, ठीक है ना। और उनकी काम बहुत इतना आसान तरीके से होता है, बढ़िया तरीके से होता है, यहाँ पर कोई आना कटिंग पोर्टल है डीसी नहीं। ये सर उनका पोर्टल है, पोर्टल पर डालते हैं वो। बिल्कुल सर, वो अपलोडिंग भी उसको उसमें होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चलिए इतना बड़ा काम झाम अगर की पॉसिबल नहीं है, कम से कम ब्रांच लेवल पे मेल तो ले सकते सर। बिल्कुल सर, रिटर्न कम्युनिकेशन के बाद ही मूव करना है। जब के ना सर, जब आदमी लिख के देता है ना कोई चीज, तो सर उसके अकाउंटेबिलिटी बनता है, आप मानो सर। मैंने व्हाट्सएप में कभी किसी का नहीं लेता हूँ, मैं ऑलवेज रिटर्न में लेता हूँ। मैं काम कम करता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे पास दूसरे तरह के वैल्यूएशन का काम है। मगर मैं देता हूँ रिटर्न में नहीं दोगे तो मैं नहीं करूंगा काम। लोग करते हैं, करने दो। केवल सिडनी मैं आपको बता देता हूँ, मेरा रिकवरी रेट बैंक में 99% रिकवरी रेट है। मैंने खींच के पैसा लेता हूँ क्योंकि मेरे पास रिटर्न में होता है। मैं बदनाम हूँ इस बात की, मगर मैं आपको बताता हूँ ये सॉल्यूशन वही है। आप जब तक रिटर्न में नहीं लोगे आपको पैसा पूरा नहीं मिलेगा, गारंटी है। रिटर्न में लेके देखो, एक बार जिद तो करो सर, जाना तो चाहता है कोई बात नहीं, एक बार जिद करो सर, रिटर्न में लेना मेरे को ईमेल करो आप, और डर जाता हूँ तो हो गया, मैं तो पैसा नहीं देगा तो भी नहीं देगा पैसा। सर इसको दूसरे वे में भी कर सकते हैं कि बैंक हमें ईमेल नहीं दे रहा है सर, तो हम बैंक से कम्युनिकेशन के बाद एक उनको कंफर्मेशन दे देंगे सर, एज पर टेलीफोनिक डिस्कशन इसके लिए मैं मूव कर रहा हूँ, प्लीज कंफर्म। ऐसा में मंगवा देंगे, वो ज्यादा बेटर है। अगर वो नहीं पूरा लिख रहा है तो इतना लिख दीजिए सर, एज पर टेलीफोनिक डिस्कशन जिसके लिए किया है, अगर इसको आगे कंटिन्यू प्रोसीड करना है प्लीज कंफर्म ऐसा। इस तरह आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली, कई बार नहीं हो पाता है कि वो मेल नहीं दे पाता है। मैं मेल करता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। यस सर, जब रिपोर्ट छुपा हुआ रिपोर्ट करता हूँ, आपकी ब्रांच में इतना सारे तो बड़ा मेल करता हूँ, मेरा तो बहुत मेल तरीके होता है, और मेरा रिकवरी रेट बहुत एक्सेलेंट रिकवरी रेट है मेरा। मालूम पड़ा जरूरी है, मैं आपको बता रहा हूँ सर, बहुत खड़ा जवाब देता है। सिंपल बात है, रिटेन कम्युनिकेशन करने पड़ेगा मुकेश जी, दैट इज द पॉइंट। तब उनका अकाउंटेबिलिटी बनेगा, नहीं तो कहीं कभी सर नहीं बिल्कुल सही है सर। अगर वो रिटेन में थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं सर, तो हम लोग, मेरा कंसर्न है कि वी आर मोर प्रोफेशनल सर, हमें उन प्रॉब्लम को सिस्टमैटिक ढंग से, टैक्टफुली ढंग से उसको हमें करना है, हैंडल करना, उनसे हमें लड़ना भी नहीं, क्योंकि काम हमें उनके साथ करना है सर। ऐसा करिए कि हमारा काम भी हो जाए, रिलेशन भी खराब ना हो सर। तो ये हम लोग को थोड़ा सा सर ना, मतलब जो रिटेन का है उसको, मतलब आप रिपोर्ट भी सबमिट करिए तो प्रॉपर रिटेन वे में करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ताकि कल डिनाई भी ना करें कि हम हार्ड कॉपी दे रहे हैं, वो भी दीजिए, राइटिंग में दीजिए। मेल तो आपको बेस्ट तरीका है सर, उसको कोई डिनाई भी नहीं कर सकता, उनका ऑफिशियल मेल पे भेज दिए, ये कुछ नहीं सर। कई बार ऐसा होता है, मैं बताऊं रिपोर्ट हम बाई हैंड नहीं देंगे, कोरियर सर्विस, ये क्या अलग तरीका मैं लेता हूं। जयपुर में बात कर रहा हूं, जयपुर में बैठा हूं, जयपुर का ब्रांच को मैंने कोरियर से भेजता हूं, उसमें बढ़िया होता है। फायदा क्या होता है, एक तो मेरे पास पीओडी आ जाता है कि भैया कोरियर इशू हुआ है, और साथ में पीओडी लगा कर मेल करता हूँ, भैया रिपोर्ट और बिल इशू हो गया और आपकी ब्रांच में इतना तारीख को मिल गया, दिस इज फॉर इन्फॉर्मेशन प्लीज। उसकी पैसा चुपचाप आ जाता है सर, मैं आपको बता रहा हूँ, चुपचाप पैसा आ जाता है।
तो सर आप प्रॉब्लम को टैक्टफुली डील कर रहे हैं कि उनकी इस तरह की समस्या है, उस समस्या का ये बेस्ट समाधान है सर। फॉलो द एसओपी, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हैं, वो चाहकर इग्नोर नहीं कर सकते सर। एम्पायरमेंट लेटर का लिखा हुआ है ये वैल्यूअर जो काम करेगा तो रिटन इंस्ट्रक्शन आपका बैंक सब जगह सारे एम्पायरमेंट लेटर में लिखा रहता है, सारे में लिखा रहता है। और दूसरी नहीं ये तो हम लोग आगे मूव कर सकते हैं इसमें एक सज्जन और बता रहे थे सर, ये बात बिल्कुल सही है। कई जगह क्या हो रहा है, रिन्यूअल हो रहा है मगर प्रेस हेलो हेलो हाँ सर, एक्चुअली जो मेन कंसर्न है सर ने बताया ये चीजें कर सकते हैं, तो जो सर काम हमारे पास है ना उसको हम लोग आगे बढ़े सर, वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि देखिए सर बैंक से लड़के हम सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। साहब ने बोला कि भेजने के बाद उन्होंने उसको कुरियर कर दिया, कुरियर की भी लगा के उनको दे दी, अब वो डिनाई करने का कोई ऑप्शन भी नहीं, और आपके पास डेट टाइम सब कुछ आ गया सर कि इस डेट को हमें ये मिला। और एक चीज और है सर, इंटरनली अगर हम एक अपना ग्रुप भी अगर ये करता है कि किसको कितना काम मिल रहा है एज एसोसिएशन लेवल पे, मैं नहीं कर रहा, मुझे किसी काम की वो नहीं करना है, थोड़ा सा अगर हम टाइम बीइंग की हम शेयर कर लें, भाई ठीक है एक्टिविटीज सही चल रही है, पता चला कि एक ब्रांच किसी को ज्यादा कर रहा है किसी को कम कर रहा है, तो कम से कम हम लोग ये देखें कि हमारे जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको मिनिमम काम तो मिले, कम से कम उस पे है सर कि थोड़ा सा मतलब उनका भी ध्यान रखा जाए तो हम आगे बढ़ पाएंगे। सबको साथ लेके चलेंगे तो बेटर है। क्योंकि देखिए सर हमारी रेस इंडिविजुअल में इनडायरेक्ट हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा हम दूर ही नहीं जाना है अपने साथी के साथ। क्योंकि देखिए सर एक और था सर, मुझे भी याद है जैसे कि जो सर्कुलर अभी नया अपडेटेड आ रहे हैं ना सर, इस सर्कुलर को इमीडिएट सारे लोगों को कम्युनिकेट कर दिया जाए, जिसको भी मिल जाता है, तो जिससे क्या कि लोग जिस डेट से रिवाइज हो रहा है सर्कुलर उस डेट से नए रेट पे सारे लोग आ जाए और उसके नीचे कोई ना जाए। केवल हमें सर्कुलर रेट ही नहीं पता, पुराने के साथ तो आगे बढ़ रहे हैं सर। सर उसका क्या सॉल्यूशन है कि टीम जो है 10,000 से 1.5 लाख की लिखी है, लोग 2,500 रुपए में काम कर रहे हैं, एग्रीमेंट उनके साइन कर दिया, एसबीआई में वैसे हुआ, बैंक ऑफ इंडिया में ऐसा हुआ। सर देखिए मेरा फिर वही नहीं, हम फिर पहले पॉइंट पे आ जाएंगे सर, हमें यूनाइट होना पड़ेगा। हम बैंक क्यों नहीं, हम खुद जब तक हम आप साथ एक दूसरे से जब तक कन्विंस नहीं होंगे, साथ नहीं चलेंगे, तब तक हम नहीं करते। देखिए दिक्कत क्या है, आपने बताया रिस्क भी बढ़ रहा है हमारा, क्रिमिनल वो भी सारी चीजें होने वाले हैं और पैसे कम मिल रहे हैं, हम मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, रिस्क जोन में ज्यादा पैसे कम मिल रहे हैं, तो ऐसे काम में आपको क्या लगता है हम कब तक आगे सर्वाइव कर सकते हैं सर? और सारा बेनिफिट बैंक ले रहा है, यूनिटी कैसे करो इंश्योर कर पाएंगे? फिर वही कि हम सर ये जो आईवा बनने का पर्पज क्या है, कहीं ना कहीं हम एक विचारधारा के साथ कुछ कॉमन मिनिमम एजेंडा में तो साथ है ना सर, तभी हम आईवा के प्लेटफॉर्म पे हैं सर। अगर आईवा से हम सहमत नहीं होते तो हम आईवा से कभी भी क्विट कर सकते हैं, आईवा मुझे कभी भी क्विट कर सकता है सर, जो मैं समझ पा रहा हूँ सर। और सर एक कहावत है कि अकेला चना भाग नहीं छोड़ सकता, अगर हमें सिस्टम का एरर है तो हमें सिस्टमेटिक ढंग से आगे बढ़ना पड़ेगा सर। आईवा अकेला एसोसिएशन नहीं है, बहुत सारे एसोसिएशन और दूसरे तो जो मेंबर्स हैं वो भी यूनाइटेड नहीं है। आप किसको जो है कहेंगे कि आप यूनाइट हो जाइए? बात कहीं से होनी चाहिए, ये कह रहे भाई आप। मेरा कहना कि शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी हमें सर। मैं देखिए सर कुछ लोग मेंबर है वो साइलेंटली है, उनको बहुत ज्यादा वो नहीं है एक्टिव, लेकिन जो एक्टिव मेंबर है इनको दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, मान लीजिए आईवा किसी एक के साथ तो बैठ के बात कर सकता है, भाईचारा तो है ही ना। ऐसा तो नहीं कि हम भारत पाकिस्तान की लड़ाई है हम बात नहीं कर सकते सर, हम विचार तो रख सकते हैं भाई इस तरह की समस्या, सेम समस्या उनके ग्रुप का भी है सर, ऐसा नहीं उनके लिए दूसरी समस्या है, सेम तरह की समस्या है क्योंकि सेम बिजनेस में है, तो उनको हम बात कर सकते हैं कि ज्वाइंटली। देखिए आज के डेट में सर देखिए जब तक हम यूनाइट नहीं रहेंगे, रेट को हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, सिस्टम को हम नहीं कर पाएंगे।
अगर इंडिविजुअल हमें काम करना है, इंडिविजुअल एंटिटी, तो हम काम करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखिए बैंक क्यों हमने वो कर रहा है, क्योंकि बैंक का लगभग सबका काम करने का अपना प्रक्रिया है। आपको किस बैंक से लिबरल है बैंक, ये बताइए मुझे। कोई ऐसा बैंक है जो हमारे साथ बहुत कोऑपरेशन रख रहा है, सारा सिस्टम फॉलो कर रहा है? कोई है ऐसा बैंक? वो तो इंडिविजुअल ब्रांच लेवल पे है, हर आदमी अलग और हर मेरा करना है कि वो तो मेरा बैंक मैनेजर का मेरा भाई है सर, तो मेरे लिए तो अच्छा है, मेरा रिलेटिव है, तो मैं ये नहीं करना चाहता। मेरा एक कंसर्न, तो वही चीजें हो रही है ना सर, वो बैंक ट्रांसफर हो जाएगा तो फिर दिक्कत भी होगी। तो थोड़ा हम लोग स्टैंडर्ड एसओपी की तरफ आगे बढ़े सर, वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि देखिए इंडिविजुअल बैंक, इंडिविजुअल ब्रांच तक हम ना देखें, हम इनको इन टोटलिटी में देखें सर, बड़े प्रोस्पेक्ट में होलिस्टिक अप्रोच लेके आगे बढ़े तो ज्यादा बेहतर होगा सर। मेरा तो कंसर्न यही है सर। और हम लोग आपस में ग्रुप में सर ओपन फोरम है, धीरे धीरे एक एक दो पॉइंट तो हम लोग लिख सकते हैं सर, बीच में उसको कंपाइल करके आगे बढ़ा जा सकता है सर। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है सर। देखिए मेरा कहना नहीं, प्रॉब्लम को जरूरत से ज्यादा डिस्कस कर लिए, हम सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे सर। हम 10 सोल्यूशन निकालेंगे, उसमें से जो 5 है सिटी वाइज मेंबर्स को जाना पड़ेगा, सिटी वाइज। यस बिल्कुल जाना पड़ेगा सर। प्रॉब्लम हमारी तो हम सबको साथ आना पड़ेगा। सिटी वाइज जाना पड़ेगा। हाँ तो वो तो करना पड़ेगा सर। और सिटी वाइज क्या हमें फिर बाकी अदर एसोसिएशन को भी थोड़ा अप्रोच में लेना पड़ेगा सर, उनको भी कॉन्फिडेंस में लेके बात करनी पड़ेगी, तो ये बेहतर हो सकता है। एसोसिएशन को भी लेना पड़ेगा सर। अगर एसोसिएशन साथ में नहीं आते हम लोग बिल्कुल जाएगा अपने एसोसिएशन के साथ। बिल्कुल जा सकते हैं सर। देखिए दूसरा एसोसिएशन हम क्यों मान के चलते हैं वो साथ नहीं आएगा, वो भी तो सिस्टम का मारा हुआ है सर। ऐसा तो नहीं कि उनके मेंबर के साथ ज्यादा बेहतर हो सुविधाएं दे रहे हैं या बेहतर हो कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। बस कि सेम समस्या वाले एक साथ नहीं आ पा रहे हैं सर। नहीं, और इसके अलावा सर कोई बेटर है तो हम लोग ग्रुप में लिख सकते हैं सर। मेरा कंसर्न वही है कि ठीक है हम अगले 1 हफ्ते तक या जुलाई भर में हम कुछ लगता है कि इन लोग सही राह पे हैं, वो करना चाहिए सर। अगर आप सही है तो अगला आएगा ही आएगा, आप ऐसे क्यों मान के चले नहीं आएगा। अगर आप सही है ठीक है, थोड़े दिन रेजिस्टेंस तो आएगा, लेकिन हम मान के चलते हम आगे बढ़ते हैं सर, अपनी टीम आगे बढ़ती है, कोई हमारे साथ जुड़ता है तो टीम आगे बढ़ने लगे वो भी आगे आ जाएगा। सर हमेशा सर मेरा ये कहना, हमें समस्या का समाधान चाहिए सर, हमें वही समस्या का समाधान है, वो भी हमारे लिए बेहतर है। आप क्यों मान के चल रहे कि आपकी समस्या है, अगर वो लीड करके समस्या का समाधान लाता है तो हम उसके पीछे खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। समस्या अल्टीमेट हमारी समाधान हो ना, हमें ये नहीं फर्क पड़ता है कि हमारा ग्रुप करता है या वो ग्रुप करता है, समस्या का समाधान होना चाहिए सर। हम तो सोल्यूशन में बात करते हैं, आप दे सकते हैं ठीक है, नहीं तो दूसरे सर देंगे, उनके पास उनसे मांग लेंगे, ठीक है सर धन्यवाद, उनको भी कर देंगे, हम क्या दिक्कत है सर। हमें तो समस्या का समाधान चाहिए ना, क्योंकि हम ही करें ये भी नहीं ठीक है ना सर। समाधान कोई ग्रुप नहीं, तो मैं वही नहीं तो टीम को ही आना पड़ेगा सर। नहीं टीम को ही आना पड़ेगा सर, मेरी टीम को तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते सर। मेरा टीम तभी तो मैं यहाँ पे है सर इस ग्रुप में। यस सर, बिल्कुल सर, हमें बिल्कुल सर समराइज कर सके। काफी हेल्दी डिस्कशन हुआ। मैं आशुतोष जी से अनुरोध करता हूँ वोट ऑफ थैंक्स के लिए। आशुतोष जी आवाज भी साफ आ रही है क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है। यस सर आ रही है। तो बहुत तेज बोलना पड़ता। धन्यवाद आप सभी लोगों का, आज शाम को आप लोगों ने एक साथ ज्वाइन किया और बहुत ही अच्छा डिस्कशन हुआ। मैं अपने वाइस प्रेसिडेंट साहब से कहूँगा जो भी हमारा डिस्कशन हुआ है वो हमारे प्रेसिडेंट साहब तक, क्योंकि ये डिस्कशन पर उन तक नहीं पहुँचेगा तो हम लोग आगे नहीं पहुँच सकते। जैसे कि हम लोगों ने भी कंक्लूड कर रखा है कि सेल्फी लगाना जरूरी है, तो सेल्फी लगाने के लिए एक आंदोलन करना ही चाहिए। करना है, पहले लेटर इशू करें, बाद में हमको जरूरत होता है क्योंकि स्ट्राइक करेंगे, सेल्फी लगाना सबके लिए कंपलसरी होगा।
तो इस तरह से तो अपना कोशिश करेंगे तो बाकी लोगों से साथ में वो लोग भी आएंगे जो भी बेनिफिट का काम करती है, क्योंकि चाहे किसी भी एसोसिएशन जो है तो हमारे साथी, किसी के साथ देर बहुत हो गई है, उन्हें भी कहीं जाना है, सभी लोगों का नमस्कार। Thank you very much, sir. Thank you.